highly talented and gifted. Today's theme, as you all know, uh, is about giving a tribute to the legend Dr. S.P. Balasubramaniam, who, in spite of everything, lives on with us. Dr. SPB was not just a singer, but a very great human being as well. Talking about a legend like him is like trying to hold a candle in front of the sun. I had the privilege of meeting him personally during several occasions along with Pooja. And what struck me as something about his personality was his humility, which is very rare among people who have achieved this kind of a success in life. So I can go on and on about him. It will take, I don't think it is necessary also, because all of you know as much about him as I do. Talking about lingering melodies, lingering melodies may have started today as an inaugural program, but they are a bunch of extremely talented singers, and each one of them is capable of giving a solo performance for 2-3 hours on their own. It is like that. They are all that talented. But they have all come together as a group to form this beautiful set of musicians. We have a lot of very distinguished people among us. I would like to welcome our chief guest of today's evening, Mr. Rajiv Balla, sitting in the front row. Mr. Rajiv Balla is a highly accomplished music composer and producer with an illustrious career spanning 18 years. He is a multi-instrumentalist. I'm very happy to have him with us today. Known for his iconic compositions in TV commercials, including McDowell's #1 Yari song and the memorable Amul Doodh Pita Hai India. His latest achievement is the production of title track for the web series Ranneeti on Jio Cinema. We also have Mr. Ajit Sundaresh, who is corporate, biggie. He's held great positions like the MD, CFO, head of global finance delivery for large global banks such as the JP Morgan Chase, Deutsche Bank, NatWest Group, etc. He is passionate about music and is the chief mentor for Neighborhood Bards and the founder force behind Fusion Copy, a musical group. He is a staunch supporter of various performing arts. Now, I request Mr. Ramesh Venkat to kindly accompany Mr. Rajiv Balla and Mr. Ajit Sundaresh to the dais for lighting the lamp.
because I feel we musicians are nothing without the audiences, you know. And I see it like a blessing, you all coming to give us all, you know. And yeah, and I'm also here to give love and strength to my musician friends here. And I request you all that whenever any of us are performing, please keep coming like this to bless us and send us your strength and love. That's all. Thank you. दिल से स्वागत करते हैं. We are going to present a tribute to legendary singer S.P. बालासुब्रमण्यम जी. लिंगरिंग मेलोडीज आज का ये प्रोग्राम उनके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं. प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे हम सभी के मन में जिनके प्रति श्रद्धा है ऐसी माता के चरणों में ये प्रार्थना गाकर. जित दानव कलभ भास्वर वर लंबोदर दर हर हल कलभ श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ति मुखं सुमुखं सादर मे करदं वरदं विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं वितमपि दधतं हतपापी शमलम्. करुणारुचिरं करुणं श्रीकान्तं कान्तं कलितैकान्तं कले सुदुरन्तं करुणावरुणालय चरणं विचितरणं शरणं करुणावरुणालय चरणं विचितरणं शरणं यामोऽयमिदं शरणं कृतमपि सुवितरणं. जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ भास्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ. दिस इज आपका मनमीत आरजे अमित. वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लिंगरिंग मेलोडीज. आते जाते हंसते गाते एसपीबी लिव्स ऑन. इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं. बाहर जोरों की बरसात हैं, फिर भी आप सभी ने यहाँ पे आके मौजूदगी दर्शाई और कर्टन में ही इतनी ज़ोरदार तालियां सुनाई दी. इसका मतलब मुझे पता चला कि बाहर तो बरसात है ही, अंदर भी आपके प्यार की बरसात जारी रहने वाली है. थैंक यू सो मच. अल्फांसो की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ. मैं तो कहना चाहूँगा आप इजाज़त दीजिए तो फिर मैं महफिलों को आगे ले जाता हूँ. कहना है? यस, थैंक यू सो मच. तो देखिए, आज लेजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम जी के कई सारे गाए गीतों में से कुछ फूल हम आप सभी के लिए प्रेजेंट करने वाले हैं. हर फूल जिस तरह हमें महकाता है और वातावरण सुशोभित कर देता है, ठीक इसी तरह एसपी बालासुब्रमण्यम जी की आवाज़ है जिसमें ताजगी है, मिठास है, अपनापन है और कई सारे जज्बात छिपे हुए हैं. एक इंसान 16 भाषाओं में 50,000 से भी ज़्यादा गाने गा जाता है. देश में ही नहीं बल्कि पूरे जगत में उनका नाम कुछ इस कदर मशहूर हो जाता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में 6 बार नेशनल अवार्ड जीतता है, 26 से भी अधिक बार नंदी पुरस्कार जीतता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई सारे सम्मानों से सम्मानित होने के बाद हम सभी के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाकर हम सभी को अलविदा कहकर चला जाता है. 5 अगस्त 2020 को हम सभी को छोड़कर वे चले गए.
उनकी याद उनके गीतों के ज़रिए हमेशा हम सभी के जहन में कायम रहेंगी। साजन फिल्म में उन्होंने ही गाया हुआ एक गीत है जो कि अनुराधा जी के संग उन्होंने गाया है। वो गीत तो गाया उन्होंने हैं, समीर जी के बोल हैं, मगर मुझे लगता है कि हम सभी चाहने वालों के दिल से आने वाली ये बात है एसपीबी के लिए, वो आज हम सुनेंगे। सलमान खान की आवाज़ के तौर पर वो बॉलीवुड में छा गए, उसके बारे में कई सारी बातें मैं आप सभी से शेयर करते रहूँगा, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस टू सिंगर्स बिफोर यू जो इस गाने को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम ज़ोरदार तालियों से अमेय जोग इनका मंच पर स्वागत करेंगे। सारेगामापा और कई सारे रियलिटी शोज़ के ज़रिए ये घर घर पहुँचे हुए हैं। खुशी इस बात की है कि कई बार आपने सूरताल या जीवन गाने जैसे प्रोग्राम में इन्हें देखा होगा। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संग इन्होंने कई बार स्टेज शेयर किया है और कई पुराने गीतों में आपने जो वायलिन सुना है पंडित प्रभाकर जोग जी का, उनके ये ग्रैंडसन हैं। और रही खास बात, आज माइक लेके सामने आया है, बट एक म्यूज़िक अरेंजर और कंडक्टर के तौर पर इन्होंने 2750 सिंगर्स को साथ में लेके अंतर्नाद नामक प्रोग्राम को कंडक्ट किया और उसका म्यूज़िक अरेंज किया और ये बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। ऐसे अमेय जोग हमारे संग हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और अनुराधा जी का पार्ट निभाने के लिए हम आगे बुलाना चाहेंगे अभिलाषा चल्लम जी को। जोरदार तालियों से हम इनका भी स्वागत करेंगे। नाम अभिलाषा चल्लम, बट हम महाराष्ट्रियन लोगों को आप मराठी सारेगमप में इंट्रोड्यूस हुई और तब पता चला अरे यार ये साउथ इंडियन लड़की मराठी गाने भी इतने आसानी से कैसे गा लेती हैं, मराठी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। हाल ही में आशा जी के संग भी इन्होंने प्रोग्राम किया तो आशा जी ने भी इनकी सराहना की है। और बताना चाहूँगा मराठी सारेगमप, हिंदी सारेगमप इनकी फर्स्ट रनर अप होने के बावजूद इन्होंने सारेगमप जो इंटरनेशनल लेवल पर सिंगापुर एडिशन था उसकी विनर होने का मान लिया हुआ है। साजिद वाजिद के लिए गाती हैं, AR रहमान के संग कोक स्टूडियो में ये नजर आई, कई फिल्मों के लिए प्लेबैक भी कर रही हैं और खुशी इस बात की है कि देश विदेश में परफॉर्म करते हुए भी ऐसे लाइव शोज़ के ज़रिए आप सभी से मुलाकात करने के लिए वे तैयार हैं, अभिलाषा चल्लम। सो लेट्स हैव दिस फर्स्ट डुएट फ्रॉम दीज ब्यूटीफुल आर्टिस्ट्स। लेट्स हैव दिस वन। प्यार करते तुमको सनम, बहुत प्यार करते तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
तुमको सनम। क्या बात है। मैंने कहा था कि ये जो बातें होंगी, ये जो बोल होंगे, वो हमारे दिल के होंगे, जो कि हम एसपीबी के लिए गुनगुना रहे हैं, है ना। तो एक बार एसपी सर के लिए ज़ोरदार तालियां हमारा प्यार दर्शाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में बहुत सारे म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, बट आपको बता दूँ, एसपी बालासुब्रमण्यम जी या ऐसे साउथ इंडियन सिंगर्स जिन्होंने बॉलीवुड में योगदान दिया है, उन पर बहुत सिलेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं। सो वी आर जस्ट थैंकफुल टू लिंगरिंग मेलोडीज़, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इस थीम को लेकर लोगों के सामने आए, तो उनके लिए भी तालियां ज़रूर बनती हैं। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को जोड़े रखता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर इस छोटे से शहर में जब 4 जून को उनका जन्म होता है, तब उन्हें पता नहीं था कि हरि कथा पढ़ने वाले उनके जो पिताजी थे या माता जी, उनके घर में संगीत तो उतना था नहीं, बट कहीं ना कहीं संगीत के सुर उनके कानों पर जो गूंज रहे थे, वो दिल पर असर कर रहे थे। बचपन से ही सपना था कि इंजीनियर बने और एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो हर पापा का सपना होता है ना, वैसे ही उनका भी तो सपना था कि मेरी पापा की जो इच्छा है वो मैं पूरी कर दूं। मगर बीमारी की वजह से कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए और कॉलेज छोड़ना पड़ा। नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें चाहत थी उसी की ओर वो खींचे चले गए और फिर हमें द ग्रेट एसपी बाला सर एक सिंगर के रूप में मिल गए। वो कहते हैं ना, कभी कभी कोई मुश्किलें आती हैं, कोई कोई दिक्कतें आती हैं, मगर उससे बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तब वे बीमारी की वजह से कॉलेज नहीं जा पाए, है ना। नहीं तो हम इतने अच्छे सिंगर से बहुत दूर रहते। चलिए, हम चाहते हैं उनके कई सारे गीतों की ओर आप सभी को ज़रूर ले जाए, मगर AR रहमान के संग उनका फर्स्ट कोलैबोरेशन जो रहा, वो कौन सी फिल्म से रहा? एनी गेसेस? परफेक्ट, यस। अंधेरे में रहने के बावजूद भी जिन लोगों ने सही जवाब दिया, उनके लिए तालियां। आप सभी को बताइए, इसके 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये जो ट्रैक है काफ़ी मशहूर हुआ है। तो आज हमारे पास भी 3 लैंग्वेजेस में गाने वाले सिंगर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे तीनों मेल सिंगर्स को हम आगे बुलाएंगे आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ। अमेय जोग, आदित्य राजगोपालन और मिस्टर प्रणव। आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मंच पे आ जाए। अमेय जी के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। आदित्य जी एक ट्रेंड वोकलिस्ट हैं, जो कि कर्नाटक क्लासिकल वोकल पिछले 3 दशकों से सीख रहे हैं। वेरी नाइस। साथ ही साथ एक मृदंगम प्लेयर के तौर पर इनकी काफ़ी मशहूर ऐसी पहचान है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। म्यूज़िकल विस्लर भी हैं और अपना खुद का एक प्रोजेक्ट भी चलाते हैं, वो साउंड स्टूडियो आई थिंक, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। आदित्य का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे संग जुड़ने वाला एक और शख्स प्रणव, जिन्होंने प्रार्थना में भी अपना योगदान दिया था। तो प्रणव भी एक बहुत ही जाने माने सिंगर के तौर पर काम कर रहे हैं और लार्सन एंड टूब्रो में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी वे काम करते हैं। बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग जगह पर अलग अलग अवार्ड्स पाकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसमें स्पेशली तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से उन्हें ऑनर किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है, ऐसे मैं मानता हूँ। उन्होंने कई सारे रियलिटी शोज़ में भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे पादुथा तियागा, पादलानी उंडी, कालीसी पादुदम, सारेगमपा, हच आंध्रा सुपरस्टार, एयरटेल स्टार ऑफ AP, कर्टन रेजर सीरीज़ और बहुत सारे। ज़ोरदार तालियां प्रणव के लिए भी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, who is going to sing in which language? Hello, I'm gonna represent Telugu. Okay, I'm singing in Tamil. okay. और मैं हिंदी का। और आप हिंदी, ओके। तो आपका हमें समझ में आएगा, ये तमिल का है या वो तेलुगु का है, हमें तो समझ में नहीं आने वाला। मैंने तेलुगु, हम तो धुन के तमिल। संग और SPB की आवाज़ के संग खो जाने वाले हैं। तो जिन्हें जो लैंग्वेज समझ में आती है उसका आप लुत्फ उठाए और तालियां। आ
रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना। आँखों में तू है, सांसों में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. గాలి నన్ను తాకిన నిన్ను తాకు జ్ఞాపకం, గులాబీలు పూసిన చిలిపి నవ్వు జ్ఞాపకం, అలలు పొంగి పారితే చెలియ పలుకు జ్ఞాపకం, మేఘమాల సాగితే మోహ కథలు జ్ఞాపకం, మనసు లేకపోతే మనిషి ఎందుకంట, నీవు లేకపోతే బతుకు దండగంట, కనిపించవో అందించవో తాను. నా చెలి రోజావి నాలో ఉన్నవి, నిన్నే తలిచేనేమి, కళ్ళల్లో నీవి కన్నీట నీవి, కనుమోస్తే నీవి ఎదలో నిండేని, కనిపించవో అందించవో తాను. தென்றல் என்னை தீண்டினால் சேலை தீண்டும் ஞாபகம், சின்ன பூக்கள் பார்க்கையில் தேகம் பார்த்த ஞாபகம், வெள்ளியோடை பேசினால் சொன்ன வார்த்தை ஞாபகம், தேகம் ரெண்டும் சேர்கையில் மோகம் கொண்டு ஞாபகம், வாயில்லாமல் போனாள் வார்த்தை இல்லை பெண்ணே, நீ இல்லாமல் போனாள் வாழ்க்கை இல்லை கண்ணே, முள்ளோடுதான் முத்தங்களா சொல் சொல். காதல் ரோஜாவே எங்கே நீ எங்கே, கண்ணீர் வழியுதடி கண்ணே. आँखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू. Nini sa 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 nini sa 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 nini sa ri sa ni sa ri sa ni sa re ma pa ga re ni ni sa re ma pa pa ba ba ma ma pa pa ba ba ma ma pa ni ni pa ga re ma pa sa ni 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 ma pa sa ni ma pa ni sa re 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 gare ni pa ga re ma pa sa ni 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 sa 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 ni ni sa 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 ni ni sa 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 ni ni sa क्या बात है यार, वाह, बहुत ही बढ़िया।
मेरे ख्याल से ये गाना सुनते वक्त आप में से बहुत सारे लोग गाना गुनगुना भी रहे थे अपने अपने लैंग्वेज में, am I right? किसी एक गाने को 3 अलग अलग भाषाओं में उतनी ही पॉपुलैरिटी मिलना ये कोई आम बात नहीं है। उसके लिए कई लोगों की मेहनत है। ऑफ कोर्स ए.आर. रहमान के कॉम्पोजिशन और उनके म्यूज़िक अरेंजमेंट को, उनके प्रोग्रामिंग को, उनके साउंड्स को तो ज़रूर हम क्रेडिट देंगे, बट एसपीबी सर, उनके लिए भी उतनी तालियां ज़रूर बनती हैं। हमारे संग एक ऐसी सिंगर भी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने एसपी सर के संग स्टेज शेयर किया है। आपको बता दूं, पी सुशीला जी, एम क्रीम, मानो, शंकर महादेवन, इन जैसी महान हस्तियों के संग अक्सर स्टेज शेयर करते हुए उन्हें उनकी बचपन की यादें तरोताज़ा कर जाती हैं। जब उन्होंने अपने घर में ही कर्नाटक क्लासिकल म्यूज़िक की सिंगिंग जो है, उसकी ट्रेनिंग जो है, वो अपनी माता से, मिसेस उषा गोपालन से लेनी शुरू कर दी और उसके बाद श्रीमती और श्री लेट जी बाल सुब्रमण्यम जी के पास भी उन्होंने संगीत सीखना जारी रखा। अभी जिनकी सरगम आप सभी ने सुनी, पूजा गोपालन जी तालियों के पहले ही आ गई हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि आज तक उन्होंने कई सारे क्लासिकल कॉन्सर्ट्स किए हैं, जैसे कि कला सरगम सिकंदराबाद, फाइन आर्ट सोसाइटी मुंबई, षणमुखानंद सभा, सुब्रमण्यम समाज, शारदा मंदिर चेंबूर, अष्टिका समाज, इन जैसे कई सारे कॉन्सर्ट्स। रियलिटी शोज़ की अगर बात करें तो जी सारेगामा हिंदी में और मराठी में भी आपने इन्हें देखा है। स्टार ऑफ एपी जेमिनी टीवी या पादालानी उंडी माँ टीवी, सप्त स्वरंगल सन टीवी पे जो आती हैं, इन सभी रियलिटी शोज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और कुछ सिंगर्स होते हैं ना, अपना पैशन लेके वो जब आगे आते हैं तब रुकते नहीं हैं, उन्हें प्लेबैक सिंगिंग की भूख होती हैं, और ये भूख भी पूरी हो गई जब उन्होंने थानू, हैदराबाद नवाब्स, एलेक्स, चित्तागोंग और इन जैसी कई सारी फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ दी। कोरस सिंगर के तौर पर पद्मावत, मणिकर्णिका, पृथ्वीराज और चित्तागोंग इन जैसी फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ दी है। शी इज़ नन अदर दैन पूजा गोपालन जी। But you know, Pooja has selected a different song for this theme. It is not sung by SP sir. ये गाना एक ऐसे सिंगर ने गाया है 1969 में। उनका एक छोटा सा कॉन्सर्ट देखने के लिए वसंत देसाई जी आप जैसे के बीच आके बैठे थे, और वे इतने मुतासिर हो गए उस आवाज़ से, उन्होंने तुरंत पंडित गंधर्व जी को बुला लिया और उनके संग उन्हें एक ड्यूएट गाने का मौका दिया। आप में से महाराष्ट्रीयन लोक कितने हैं? ऋणानुबंधाच्या माहिती आहे गाणं? ते गाणं ज्या गायिकेने गायलेलं आहे, उस सिंगर का नाम है वाणी जयराम जी। आज हम उन्हें भी ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। देखिए, ऐसा किसी के भी साथ न हो, पद्म भूषण डिक्लेयर हो गया और महज 15 दिनों में उनकी मौत हो गई, तो वो सम्मान ले भी नहीं पाई। इस बात का दुख है लिंगरिंग मेलोडीज को। इसलिए पूजा जी और हमारी पूरी टीम मिलकर उन्हें ये ट्रिब्यूट देना चाहती हैं, उन्हीं के गाए गुलजार साहब ने लिखे गुड्डी फिल्म के इस गाने के संग। नित मन प्यासा, नित मन प्यासा, नित मन तरसे। बोले रे पपी हरा, बोले रे पपी हरा, पपी हरा, बोले रे पपी हरा।
you so much. वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये एक अनोखा गीत हमने इस प्रोग्राम में चुना है, बट हर गीत को जब आप सुन रहे हो तो आपके कानों पर ओरिजिनल म्यूजिक आ रहा है। इसका क्रेडिट हमारे सारे म्यूजिशियंस को और टीम कंडक्टर दर्शना जोग इनको भी जाता है, इनके लिए भी उतनी तालियां हो जाए। अगले गाने की प्रस्तुति के लिए आदित्य जी के संग में एक और नाम को आगे बुलाना चाहूँगा, जो कि हमारे संग लिंगरिंग मेलोडीज में एक सिंगर के तौर पर शरीक हुई हैं। प्लीज़ वेलकम विथ योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीपिका जोग दातार। आपको बता दूं, सारेगामापा हो या सूर नवा ध्यास नवा, इन जैसे रियलिटी शोज में आपने इन्हें ज़रूर देखा है, बट इनसे हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता है। जब हम बच्चे होते हैं तब किसी ना किसी बच्चों के गानों पर या ऐसे वीडियोस पर हम अपना समय बिताते हैं और वो वीडियो देखते रहते हैं। तो स्पेशली चॉकलेट सा बंगला कि वह सांग सांग भोलानाथ, इन जैसे जो बचपन में बच्चों को सुनाते हैं ना गाने, उन गानों में जो बहुत कम उम्र में हमारे कानों पर आवाज़ आती थी वो दीपिका जी की हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये प्लेबैक सिंगिंग का जो रुख है वो यूं ही हिंदी और मराठी फिल्मों की ओर रखा हुआ है। इसी की वजह से उन्होंने ब्लफ मास्टर, रांझण, तुया धर्म, कौन सा, डबल सीट और इन जैसी कई फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ दी है। बताने में बड़ी खुशी होती है कि नरगिस दत्त अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं और फिरोदिया करंडक में लगातार 2 सालों तक ये विनर ठहरी हैं। तो ऐसी बहुत सारी, इतनी सी तालियां, हाँ, कई सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना योगदान देने वाले ये सभी आर्टिस्ट हैं और हमें खुशी इस बात की है कि लिंगरिंग मेलोडीज़ के संग ये भी जुड़े हुए हैं। अगर एसपीबी सर की बात करें तो उन्होंने कई फीमेल सिंगर्स के संग डुएट गाए, स्पेशली रोमांटिक गानों में उनका जिक्र ज़्यादा होता है, मगर कुछ डांसिंग नंबर्स के लिए भी और हल्के फुल्के ऐसे ही पेपी नंबर के लिए भी उनकी आवाज़ जचती है। जैसे कि फिल्म सागर में आशा जी के संग भी गाते हैं, गोवन शैली का म्यूज़िक है और हम सभी को पता है कि ये गाना कितना मशहूर है। सो लेट्स हैव दिस वन। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ हो। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ हो। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ हो। अरे जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, हो। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, हो। अरे जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ हो। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ हो।
ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। होए 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 जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो। जॉनी ने जब तुझसे की थी ऐसी बातें, गर्मी के वो दिन थे या सर्दी की रातें, क्या वो ये बोला कुछ ऐसा हो जाए, हम तुम हो कमरे में और चाबी खो जाए। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। हो अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया मारिया। दोस्तों देखिए, कई बार ऐसे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में लोग तो आते हैं और आते वक्त हर कोई अलग अलग टेंशन में होता है, अपने अपने काम होते हैं हर किसी को। थोड़ी देर बैठेंगे, देखते हैं 4-5 गाने सुनने के बाद मन बना लेते हैं रुकना है या नहीं। मेरे ख्याल से अब सबने मन बना लिया है, जाना नहीं है। एम आई राइट? है ना? हाँ, तो मेरी एक शर्त रहेगी कि देखो, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह, है ना? फूलों की तरह रहना मतलब आपको चेहरे पर स्माइल रखनी है, और जब कभी बिखरना है तो तालियों के संग बिखेरना है। वो आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं, जो कि आर्टिस्ट तक पहुंचती रहेगी। अब देखिए, एसपी सर ने वैसे तो साउथ में अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारा काम किया, मगर हिंदी में जो भी सिलेक्टेड काम किया वो एक फिल्म मानो पूरी की पूरी उनकी बन गई। एक तरफ अभी सागर फिल्म का हमने गाना सुना, इसमें ऋषि कपूर के लिए हमारे किशोर कुमार जी गा रहे थे और कमल हासन के लिए एसपी सर का चुनाव हो चुका था। ठीक इसी तरह एक और ट्रायंगुलर लव स्टोरी की फिल्म थी साजन। लॉरेंस डिसूजा सर ने जब इस फिल्म को लोगों के सामने लाया, तब संजय दत्त के लिए कुमार शानू की आवाज़ लोगों को भा गई और दूसरी छोर सलमान खान के लिए आवाज़ एसपी सर की भा गई थी, क्योंकि मैंने प्यार किया इससे पहले ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी थी और मशहूर हो गई थी और पूरी दुनिया को पता चला कि अब सलमान खान की आवाज़ एसपी सर बने हुए हैं, तो उसमें कोई बदल संभव नहीं है। नदीम श्रवण जी को जिस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला, उसी फिल्म का एक और गीत अब की बार आप सभी के सामने प्रणव जी प्रेजेंट करेंगे। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तो कभी हम मिले तो ज़माना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तो कभी हम मिले तो ज़माना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम।
मैं शायर नहीं, दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं, परवाना नहीं। मैं शायर नहीं, दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं, परवाना नहीं। मिली जब से नजर तब से जाने जिगर, मिली जब से नजर तब से जाने जिगर। मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना, अब जाने क्या होगा चले जाना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। क्या पता फिर कहाँ कब मुलाकात हो, वो हसीना से फिर दिल की बात हो। क्या पता फिर कहाँ कब मुलाकात हो, वो हसीना से फिर दिल की बात हो। उसके जैसी हंसी मैंने देखी नहीं, उसके जैसी हंसी मैंने देखी नहीं। रोकेगा क्या जमाना, मैंने दिल में है ठाना, मुझको उसे है अभी अपना बनाना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तो कभी हम मिले तो ज़माना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। Thank you. सलमान खान दुनिया के एक में ऐसे आर्टिस्ट हैं, इंसान हैं जो कि अब तक ये गाना गा सकते हैं। समझे? कुछ लोगों को घर पे जाने के बाद पता चलेगा। खैर, वो कहते हैं ना कि प्यार कब, किससे और कहाँ हो जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। दिल एक ऐसा घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता। कोई भी कभी कभी भी यहाँ आकर बैठ सकता है और फिर हम उनके लिए दिल दे बैठते हैं। और ऐसी ही प्यार की कहानियाँ कभी मिलाव की तो कभी जुदाई की हमें फिल्मों में देखने मिली हैं। पिछले कई सालों से, कई दशकों से हम सभी यही देखते चले आ रहे हैं। उसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं और बस वो फिल्म कुछ इस कदर मशहूर हो जाती है गानों के साथ कि वो कहानी, वो गाने, वो किरदार सब कुछ हमारे जहन में रह जाता है। एक याद के तौर पर जब कभी हम याद करते हैं उन्हें तो हमारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट रहती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी भी फिल्में देखी होगी जो कि ओरिजिनल साउथ में रिलीज़ हुई और वहाँ मशहूर हुई। उन्हीं में से एक फिल्म है 1989 की प्रेमा। आप में से कितने लोगों ने देखी है? नहीं, ओके ठीक है। एक और हिंट देता हूँ। इलैयाराजा जी ने उसी फिल्म में गाना कंपोज किया था। वो गाना काफ़ी मशहूर हुआ और जब इसी फिल्म की रीमेक हिंदी में बनी तो लव इस नाम से आई थी, जिसमें सलमान खान रेवती के संग नजर आए थे। याद आया गीत? याद आई? यस।
अब सबको याद आएगी। चलिए मैं आदित्य, पूजा और प्रणव इन तीनों को आगे बुलाने जा रहा हूँ। अमेय हूँ, सॉरी। प्लीज़ इस गाने की पेशी लोगों के सामने रखें आप, प्लीज़ आइए। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। साथिया ये तूने क्या कहा, बेलिया इसने क्या कहा। यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा। तुझको संभालो ये मेरा जिम्मा, मैं हूँ तो क्या गम जाने तमन्ना। अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है। मैंने कहा ना सनम, अब तू मेरे साथ है। तो फिर संभाल ला 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 ला, के मैं चला, ला 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 ला, जाना कहाँ ला 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 आगे में आ। ला 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 ला। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। నింగి నేల ఏకం కాగా ఏ క్షణమిలాగే ఆగింది. నింగి నేల ఏకం కాగా ఏ క్షణమిలాగే ఆగింది. ఒకటే మాటన్నది, ఒకటే బొమ్మన్నది, మనసే ఇమ్మన్నది, అది నా సొమ్మన్నది. పరువాలు మీటి నననననా, సెలయేటి తోటి నననననా, పాడాలి నేడు, ననననన కావాలి తోడు. నన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 నनन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 
ఏనాడు నాలో జరగంది ఈ అనుభవం మరణారానిదే ఆనంద రాగం మోగింది ఈ అందాల లోకంలో
साथिया तूने क्या किया, इस गाने का हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन आप सभी को हमने सुनाया है। देखिए, ऐसे कुछ गाने जब मशहूर हो जाते हैं तब सिंगर को पता नहीं होता कि गाते वक्त इस गाने की कहानी क्या होगी, ये गाना किस हद तक पॉपुलर हो जाएगा। मगर गाते वक्त इतने सारे एक्सप्रेशंस डालना और अपना 100% देना, ये हर आर्टिस्ट का फ़र्ज़ होता है और ये फ़र्ज़ हमारे सभी कलाकार भी निभा रहे हैं। और ऐसे प्रोग्राम में कलाकारों की सराहना करने के लिए जब ऐसे लोग आते हैं और हर गाने को सराहते तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक लहर थी, हम साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, न भूल पाएंगे हम इस हसीन पल को जब आप हमारी ज़िंदगी में शामिल हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ एसपी सर साउथ में अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने गा रहे थे। इलैयाराजा जी के संग उनका बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा, उनके संग उन्होंने कई सारे गाने गाए। हम चाहते हैं कि एक ऐसा ही साउथ का पॉपुलर गाना आप सभी को सुनाएं। आदित्य जी को मैं आगे बुला रहा हूं और ये गाना सुनने के बाद आपको इस फिल्म का नाम मुझे बताना है, क्योंकि वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே வரும் வழியில் பனிமழையில் பருவநிலா தினம் நனையும் முகிலெடுத்து முகம் துடைத்து விடியும் வரை நடைபழகும். வரும் வழியில் பனிமழையில் பருவநிலா தினம் நனையும் முகிலெடுத்து முகம் துடைத்து விடியும் வரை நடைபழகும். வானவீதியில் மேகமூர்வலம் காணும் போதிலே ஆறுதல் தரும் பருவமகள் விழிகளிலே கனவு வரும். இளைய நிலா பொழிகிறது உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வாரமே இளைய நிலா பொழிகிறது. முகிலினங்கள் அலைகிறதே முகவரிகள் தொலைந்தனவோ முகவரிகள் தவறியதால் அழுதிடுமோ அது மழையோ. முகிலினங்கள் அலைகிறதே முகவரிகள் தொலைந்தனவோ முகவரிகள் தவறியதால் அழுதிடுமோ அது மழையோ. நீலவானிதே வெள்ளியோடைகள் ஓடுகின்றதே என்ன ஜாடைகள் விண்வெளியில் விதைத்தது யார் நவமணிகள். இளைய நிலா
பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே क्या बात है। अच्छा, क्या नाम है फिल्म का? एक मिनट, एक का नहीं समझता है सब लोग, बोलोगे कैसे? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आया। ये जो नाम है, इसी फिल्म का ये जो गाना है, इस गाने पर एक हिंदी गाना भी टेस्ट। परफेक्ट, यस। बीच बीच में मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप सभी जिंदा है ना। यस, तो मजा आ रहा है। एक बार तालियां हमारी पूरी टीम के लिए हो जाए यार, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, स्पेशली साउंड इंजीनियर परीक्षित कुलकर्णी हमारे संग है, वेरी नाइस। और लिंगरिंग मेलेडीज, इसके बाद आप सभी को रोजा फिल्म के एक और गाने की ओर ले जाएंगे। वैसे ये गाना मिनमिनी ने गाया हुआ है, मगर रोजा फिल्म के दौरान जब एसपी सर AR रहमान के स्टूडियो गए थे, तब एक वाकया हुआ था। उन्होंने देखा यार, बंदा तो टैलेंटेड दिख रहा है, मगर इतनी छोटी सी रूम, कोई म्यूजिशियन नहीं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, इसके बावजूद ये कैसे इस फिल्म का गाना बना पाएगा, ये सबसे पहला सवाल एसपी सर के मन में आया था। तो बाला सर ने उनसे बात भी करी, तो AR रहमान पता है ना, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हाँ विल ट्राई ऐसे बोल दिया और बात ख़त्म हो गई। जब उन्होंने ये फिल्म देखी और इसके साउंड ट्रैक सुने, तब वे इतने मुतासिर हो गए, उन्होंने तुरंत AR रहमान को गले लगाया और कह दिया कि आप सच में कमाल के हो। यूं ही नहीं, उन्हें द मोज़ार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। ये काम जो AR रहमान ने कर दिखाया, उससे हम सभी प्रभावित हैं। और बस एक फिल्म बहुत होती हैं खुद को प्रूव करने के लिए, उन्होंने वो प्रूव कर दिया। हम चाहते हैं उसी फिल्म का ये बहुत ही ज़बरदस्त नगमा आप सभी के सामने प्रेजेंट करें। दीपिका और अभिलाषा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मंच पे आए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
से बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा। மல்லிகை பூவா மாலையிட ஆசை, தென்றலைக் கண்டு மாலையிட ஆசை, மேகங்களை எல்லாம் தொட்டுவிட ஆசை, சோகங்களை எல்லாம் விட்டுவிட ஆசை, தாழ்வுகளின் உலகை கட்டிவிட ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்னை என்ற பூமி சுற்றி வர ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை. आज हमारे संग जितने सारे सिंगर जुड़े हुए हैं वो सभी आपको वो ओरिजिनल साउथ की लैंग्वेज और साथ ही साथ हिंदी फिल्म का भी वो गीत, ये सब कुछ मिला जुला कर प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे अक्सर प्रोग्राम्स में देखा नहीं जाता है, तो मैं चाहूँगा इनके इस अंदाज़ के लिए हम ज़रूर उन्हें सराहें। वेरी नाइस। मतलब इसमें मौजूद हर कोई खुश हो रहा है, जितने सारे साउथ इंडियन यहाँ पे मौजूद हैं वे भी खुश हो रहे हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस में इन्होंने गाया, 16 भाषा। मेरे ख्याल से ये नामुमकिन काम है, मगर इन्होंने बहुत आसानी से मुमकिन कर दिखाया। एसपी सर के बारे में कहे तो क्या कहें, उस इंसान ने जब साउथ में गाया तब उनकी आवाज़ के कई सारे लोग दीवाने बने। लता जी ने उनकी आवाज़ सुनी और एक दूजे के लिए इस फिल्म में बालाचंदर जी के कहने पर लता जी ने भी सपोर्ट किया और कहा कि यस, ये आवाज़ हिंदी फिल्मों में ज़रूर आनी चाहिए। मगर इसी आवाज़ को लेकर थोड़ी सी डिबेट भी हुई थी जब एक फिल्म बन रही थी और नया चेहरा सलमान खान बॉलीवुड में लॉन्च हो रहा था। इससे पहले हालांकि उन्होंने बीवी हो तो ऐसी फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर किया था, बट लीड एक्टर के तौर पर वे पहली बार लॉन्च हो रहे थे और उनके लिए आवाज़ चुनी जा रही थी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि एसपी सर की आवाज़ फिट रहेगी, मगर फिल्म के निर्देशक और निर्माता दोनों इस बात से खफा थे कि नहीं, ये काफ़ी यंग लड़का है और एसपी सर की आवाज़ काफ़ी मैच्योर लगती है, वो इन पर जचेगी नहीं। मगर इस डिबेट के बाद आखिरकार म्यूज़िक डायरेक्टर जीत गए और सलमान के लिए वो आवाज़ हम सभी को सुनाई दी जो काफ़ी लंबे अरसे तक लगातार 17 फिल्मों में सलमान की आवाज़ बनकर ही मशहूर रही, वो एसपी सर की रही। मैं जिक्र कर रहा हूँ फिल्म मैंने प्यार किया के उसी गीत का, जिस गीत के ज़रिए मानो हर लड़की ये चाहती थी कि कोई ना कोई महबूब मेरी ज़िंदगी में आए और वो मेरे लिए ये लाइनें गुनगुनाए, जो अब की बार हमें हम सभी के लिए गाने वाला है। आइए।
मेरे रंग में रंगने वाली परे हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परे हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। झुके बदन को हवा क्यों महकी, राती है कुछ बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। हाँ, क्यों हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, दो ना, दो ना। हर माशूका के लिए महबूब ये लाइन गाया, ऐसी हर किसी की तमन्ना होती है। वो गाता भी हैं, बाद में शादी हो जाती हैं, फिर मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उनके सवालों के जवाब हमें देने पड़ते हैं। खैर, ये मजाकिया बात हुई, मगर हम सभी के जीवन में जितने सारे पल हैं, मानो हर पल में रिलेट हो, ऐसे कई सारे गाने सामने आ जाते हैं हिंदी फिल्मों के ज़रिए। और ये सारी फिल्में हम सभी को लुभाती तो हैं, मगर साउथ में भी अपनी एक अलग कहानी होती है। वहाँ के लोग भी एक दूसरे का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं और वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, 1969 की बात है जब MGR अभिनीत आदि माय पेन फिल्म बन रही थी
और उसी फिल्म के दौरान एसपी बालासुब्रमण्यम इस नए आर्टिस्ट को गाने का मौका देने की तैयारी तो हो चुकी थी, मगर इन तैयारी में जब उनकी रिकॉर्डिंग थी उसी दिन पता चला कि एसपी बालासुब्रमण्यम जी टाइफॉइड की वजह से बहुत बीमार हैं और वे स्टूडियो में मौजूद नहीं रह पाएंगे। उस ज़माने में ऐसे होता था कि शूट की डेट तय होती थी और शूट की वजह से गाने उससे पहले रिकॉर्ड होना काफ़ी ज़रूरी होता था। तो उस वक्त कोई और रहता तो ज़रूर वो गाना किसी और से रिकॉर्ड करवा लेता और शूट तय डेट पर कंप्लीट कर लेता, मगर एमजीआर ने बताया नहीं कि इस नए लड़के को हमें मौका देना है और उसके लिए हम हमारी शूट की डेट आगे शिफ्ट करेंगे। एमजीआर ने जो उन्हें रिस्पेक्ट दिया, उसी रिस्पेक्ट के नाते कुछ दिनों के बाद जब वे ठीक हो गए, स्टूडियो में आए, गाना गाए और वो गाना भी काफ़ी मशहूर हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि म्यूज़िकल इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर भी रखते हैं। इन सभी को हम सलाम करते हैं जिनकी वजह से इन लोगों की प्रतिभा सामने आती है। अब आइए, साउथ से जुड़ी अगर बात हो रही है तो फिल्म ड्यूएट से एसपी सर और के.एस. चित्रा जी ने गाया हुआ एक ड्यूएट हम आप सभी को सुनाएं। फिल्म का नाम भी ड्यूएट ही है। आइए हम बुलाना चाहेंगे पूजा जी और प्रणव जी को। अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, పూవంటి పదములకు పుష్పాంజలి, బొట్టైన పెదవులకు మోహాంజలి, కలహంస నడకలకు గీతాంజలి, కలరాని నగవులకు కవితాంజలి. అంజలి అంజలి పుష్పాంజలి, అంజలి అంజలి పుష్పాంజలి, పూవంటి పదములకు పుష్పాంజలి, ముత్తైన పెదవులకు మోహాంజలి, కలహంస నడకలకు గీతాంజలి, కలరాని నగవులకు కవితాంజలి. నిన్నదాకా నువ్వు నేను ఇరువురం ఎవరని, కమ్మని బంధం ఇలా తెలిపెను ఒకటని, కడలిని పడువానలా గడిచిన మదీది, కడిగిన సిరిమోములా కదైది నా చెలి, ఎదురుగా తొలి స్వప్నం తొణికినది, ఎదలు మధుకామ్యం తడిసినది. అంజలి అంజలి వలపుల నాంజలి, పూవంటి పదములకు పుష్పాంజలి, బొత్తైన పెదవులకు మోహాంజలి, కలహంస నడకలకు గీతాంజలి, కలరాని నగవులకు కవితాంజలి. అంజలి అంజలి పుష్పాంజలి, అంజలి అంజలి పుష్పాంజలి,
పువ్వంటి పదములకు పుష్పాంజలి ముత్తైన పెదవులకు మోహాంజలి కలహంస నడకలకు గీతాంజలి కనరాని నగవులకు కవితాంజలి சீதையின் காதல் என்று விழி வழி நுழைந்தது கோதையின் காதல் என்று செவி வழி புகழ்ந்தது என்னவோ என் நெஞ்சிலே இசை வந்து துளைத்தது இசை வந்து பாதி வழி தமிழ் மேல நுழைந்தது இசை வந்து திசை பார்த்து மனம் கொழுந்தே தமிழ் வந்து திசை பார்த்து கசிந்தே அஞ்சலி அஞ்சலி இவள் கலை காதலி அந்தி உன் அன்புக்கு புஷ்பாஞ்சலி நண்பா உன் கருதுக்கு நடனாஞ்சலி கண்ணா உன் இசை வாழ கீதாஞ்சலி கவியே உன் தமிழ் வாழ கவிதாஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி பூவே உன் பாதத்தில் புஷ்பாஞ்சலி பொன்னே உன் பெயருக்கு பொன்னாஞ்சலி கண்ணே உன் குரலுக்கு கீதாஞ்சலி கண் காண அழகுக்கு கவிதாஞ்சலி थैंक यू सो मच தேங்க்யூ वाह। पूजा जी एक बात बताऊं, साउथ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम ये हमें समझ में तो नहीं आती, बट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, दिल तक पहुंच जाता है ना? That's our USP. We would like to promote this multilingual concept. वाह। So इसीलिए हमने ये ग्रुप बनाया है ताकि because our main theme is music has no language. Correct. First of all, exactly seriously, जो हिंदी में गाते, जो तेलुगु में गाते, जो तमिल में गाते, जो कन्नड़ा में गाते, जो मराठी में गाते, म्यूजिक तो एक ही है. करेक्ट It has no language at all. करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, जोरदार तालियां सच में। I would like to share a moment. Actually, myself and Pranav belong to an academy in Hyderabad called Little Musicians Academy, and उनका ये मतलब the chief patron of our academy was Academy is none other SP than SP sir. Balasubramaniam. So हमारे काफ़ी सारे moments थे उनके साथ. He was such a humble person. And एक बात मुझे बहुत it keeps ringing in my mind. एक प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि I am so happy to be associated with Pooja and my sister Rachna. So इतना वो छू गया मुझे मेरे दिल पे that I can never forget that moment. So I just felt like sharing this with you all. So thank you. Thank you. एक बार किसी ने पैरों से पूछ लिया कि ऐसी क्या बात है कि सब आकर तुम पे अपने मस्तक टच कर देते हैं, आपके ही पैर गिरते हैं। और वो पूछने वाले पता है कौन थे? हाथ या हाथ। तो पैरों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कह दिया कि उसके लिए ज़मीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। ऐसी बातें हम सभी को इतने बड़े बड़े कलाकारों से सीखनी मिलती हैं कि आप प्रतिभा से बड़े तो ज़रूर हो जाओ, मगर स्वभाव से भी उतने ही हम्बल रहना काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसे एसपी सर थे, इसलिए उनके गुजरने के बाद भी आज हम उनकी याद निकाल रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं और उन्हें अच्छे कॉज के लिए याद कर रहे हैं। एक बार सच में हम हमारा प्यार बरसाएं। हम आगे ज़रूर बढ़ना चाहेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लव टू रिक्वेस्ट मिस्टर गोपालन सर प्लीज़ डू कम ऑन स्टेज and I am handing over this mic to you. Thank you, Amit. Today
I would like to take this opportunity to mention some very important and distinguished guests who have kindly consented to come and attend our program. Mr. Radhakrishnan, Chairman, BOT Fine Arts Society, Chembur. Sir, thank you very much for kindly coming and attending the function. We also have a very die-hard SPB lover and a fan. He is none other than Mr. Sethmani Ananda. Please. He is in fact had an opportunity to sing along with Dr. SPB, as well as he has composed a lot of songs, and I think he's even made a small movie. He was felicitated in other countries like Dubai and other places. Welcome, Mr. Ananda, sir. We also have Mr. Moolchand, a very good music enthusiast and somebody who encourages and promotes young budding music artists as well as dance artists. Welcome, sir. I also would like to take this opportunity to thank the sponsors, without whom, the finance being such an important thing. I would like to thank Mr. K.H. Gopal, Dr. Ramaseshan Ganapati for a very generous sponsorship. I would also like to thank Mr. Ajit Sundaresh for a generous contribution. I'm also happy to say that he is a very passionate music lover, and you will have an opportunity to hear him later on as the show progresses. He's a good singer, and he's going to also, render a song for us. Other than this, I would like to announce Messrs. BM Infra. BM Infra are property developers, and they have done an extremely high quality construction at Chembur, at rather Govandi. They have 1, 2, 2.5, 3.5 and 4 BHK apartments, and it's an extremely well constructed building and having very good amenities, including a swimming pool, children's play yard, and a podium with gymnasium and other things. So I would like to thank them for their generous contribution. I would also like to thank Equitas Bank, who have also been sponsoring this program at a very short notice. Thank you very much. It's a retail bank, and we have Pavitra Nayakar, who is a public relations manager. She is having pamphlets of this bank, which gives certain additional facilities other than the normal banks, and also some very good interest rates. So interested people can later approach her and take details. The contact numbers, etc., are there on the standee, as well as the banner which is tied outside. So thank you all. And now I think we can proceed further, Mr. Amit. थैंक यू सो मच. एक लकी ड्रॉ निकला है. से रिक्वेस्ट रहेगी कि इंटरवल के बाद जो भी गायब होंगे उन्हें रात को बुरे बुरे सपने आएंगे. आखिर तक आप सभी को हमारे संग बने रहना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिखरने के तो लाखों बहाने मिल जाएंगे,
आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। और अगर हमने ये अवसर ढूंढा है तो उसे हमें सेलिब्रेट करना है। हम आपके हैं कौन, इस फिल्म के बारे में क्या कहें, एसपी सर के बारे में क्या कहें। ये एक ऐसे सिंगर रहे हैं, किशोर कुमार जी ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि एसपी सर के अलावा कोई और ऐसा सिंगर है जो कि अपने एक गले से इतने सारे एक्सप्रेशंस बयां कर पाता है। वो हैं एसपी बाला सर। उन्होंने इतने एक्सप्रेसिव वॉइस गाने के ज़रिए लोगों के सामने बयां किए हैं और इतने ज़बरदस्त गाने गाए हैं। मेरे ख्याल से सलमान खान के लिए एक ही फिल्म में अलग अलग मूड के गाने उन्होंने एक ही फिल्म में गाए हैं। तो हम चाहते हैं उसी फिल्म के कुछ गानों की एक झलक आप सभी के सामने प्रेजेंट हो। मैं चाहूँगा अमेय और हमारे सभी साथी अमेय और अभिलाषा, यस प्लीज़ डू कम ऑन स्टेज। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया छुपके करे जो वफा ऐसा मेरा प्यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है।
कोई उसको बताना। हाय राम, कुड़ियों का है जमाना, हाय राम, कुड़ियों का है जमाना, हाय राम, कुड़ियों का है जमाना, हाय राम। कुड़ियों का है जमाना। लिंगरिंग मेलोडीज की ओर से जो प्रोग्राम प्रेजेंट हो रहा है उसमें एक छोटा सा हम इंटरवल ले रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द लौटिएगा ताकि सेकेंड हाफ में भी बाला सर के और कई सारे गाने हम आप सभी के सामने प्रेजेंट कर पाए।